All right, so we started trigonometry in our last session and we covered a number of different basic concepts. Abdul Batani. So we started with this in our last session. We talked about what happens if we have bigger angles, 360 से बड़े angles हो, in fact 90 से बड़े angles हो, तो उनके sin cos tan कैसे निकालते हैं, right? Negative angles क्या होते हैं, 360 से बड़े angles क्या होते हैं, ये हमने देखा था. So what's the convention that we use for finding angles? Positive x-axis से measure करते हैं. Anti-clockwise is positive, clockwise is negative, right? This is how quadrants are numbered: first, second, third, fourth. Then we looked at this logic of how in each quadrant some ratios are positive and some are negative. ASTC आपको याद रखना है, in the first quadrant all ratios are positive and the second sine is positive, बाकी दोनों negative हैं. Third में tan positive है, बाकी दोनों negative हैं. Fourth में cos positive है, बाकी दोनों negative हैं. You have to remember this. ASTC आपको याद रखना है. You'll need to use this for solving equations. We talked about basic angle. Basic angle क्या होता है? Horizontal line के साथ angle, right? Horizontal line के साथ angle. That's the basic angle. It's always acute. किसी भी angle का अगर कोई भी दो angles हैं, उनके basic angles में तो उनके sin की values same आती है, उनके cos की values भी same आती है, उनके tan की values भी same आती है. सिर्फ difference क्या होता है? Plus minus का difference होता है. उसका कोई plus हो के minus हो, magnitude वही होता है उनका. Okay, the number होता है itself, that is the same. अगर basic angle same हो. Now using these concepts, we learned how to solve equations that involve trigonometric functions. For example, if you have sin theta equals something, sin theta equals 0.5, ये आपको equation solve करनी है. इसके लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले, this is the method that we always follow for this. सबसे पहले थीटा को अल्फा में चेंज कर देना, एंगल को अल्फा में कन्वर्ट कर देना, जो राइट साइड होगी उसको पॉजिटिव कर देना. ओके, देन फाइंड द बेसिक एंगल. बेसिक एंगल आ जाएगा. क्वाड्रेंट से देखेंगे कौन से एंगल्स जो है वो सेटिस्फाई करते हैं उस इक्वेशन को. क्वाड्रेंट से कैसे देखेंगे? आपको पता है यहाँ पे इन दिस केस फॉर इंस्टेंस साइन इज पॉजिटिव. साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में होता है, तो फर्स्ट और सेकंड वाले एंगल्स आपके सॉल्यूशंस होंगे. ऑलराइट, and this is what we did in our last session. We did a couple of examples in this as well. Towards the end of our last class, I told you these two examples that you were supposed to try on your own. Let's see how we're going to approach this. सबसे पहले क्या करेंगे? Basic angle निकालेंगे. So we say sin alpha equals 0.2. Find the basic angle. What's that? 11.5 degrees. That's the basic angle. Okay. आप बताएं. तो गलत होगा. हाँ, क्या आंसर ही गलत आएंगे, वो तो डिफरेंट आएंगे. कर सकते हैं, पर अगर आपको कैलकुलेटर पे मोड चेंज करना भूल गया तो फिर वो एंड पे भी भूल जाएगा, वो भी नहीं याद रहेगा. डिग्रीज में तो कैलकुलेटर मोड डिग्रीज नहीं होना चाहिए. ओके. अच्छा, अल्फा इज 11.5 डिग्रीज. ये आ गया. अब क्या करेंगे? क्वाड्रेंट्स में देखेंगे कौन कौन से क्वाड्रेंट्स पॉसिबल हैं. साइन इज नेगेटिव. साइन इज नेगेटिव. ASTC फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है. हम कौन से क्वाड्रेंट्स देखेंगे? सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ. दीज आर द टू पॉसिबल क्वाड्रेंट्स. एक ये एंगल हो सकता है अल्फा और एक ये एंगल हो सकता है अल्फा. यहाँ पर हो सकते हैं आप. ठीक है. Now let's look at what these angles are going to be. So let's look at the first one. This is the first one. This is theta equals 180 plus 11.5. That's 191.5 degrees. That's our first answer. Okay. फिर उसके बाद next, यहाँ से पूरा आके you reach this point. Post this. This is 360 minus 11.5, and that is 348.5. This is the second answer. But now look at the interval that's given. That's 0 to 720. यानी कि 360 से बड़ी वैल्यूज भी आपकी हो सकती हैं. तो आपको फिर पूरा सर्कल घूम के दोबारा भी देखना है कि दोबारा भी कोई वैल्यू सकती है. सॉरी, मतलब क्या कहे?
दोनों में 360 ऐड कर दे। सो वन आइडिया है दोनों के अंदर 360 ऐड कर दे, या फिर आप पूरा ये घूम के देख लें दोबारा, ये 360 पूरा हो गया और फिर आप वापस यहाँ पर आए, वो देख लें वो क्या आता है। ठीक है, सो यू कैन डू इट आइदर वे। एक दफा ये पूरा सर्कल अगर घूम के आते हैं वापस इस एंगल अल्फा के ऊपर, तो ये क्या होएगा, 360 पूरा घूम गया, 180 मोर आफ्टर दैट, और उसमें फिर 11.5 और ऐड कर दिया, दैट इज गोइंग टू गिव यू 551.5 डिग्री। और फिर जो उससे अगला वाला है वो कैसे आएगा, 720, दो सर्कल्स पूरे घूम के, minus 11.5 degrees, and that gives you 708.5 degrees. दोबारा से फिर 3 सर्कल। ओके, ये आपकी थीटा की वैल्यूज हैं, दीज आर द सॉल्यूशंस टू दैट इक्वेशन। ये सॉल्यूशंस है आपके उस इक्वेशन के, ये सारे उसके सॉल्यूशंस हैं, 4 सॉल्यूशंस हैं। फिर इस केस में 6 सॉल्यूशन आ जाता है। ये क्लियर है? इसमें कोई मसला किसी को नहीं? नो प्रॉब्लम। अब्दुर्रहमान समझ आ रहा है सर? जी, आपने क्या हुआ, कहाँ पे, जो नीचे वाले एंगल से निकाले? तो देखे ना उसने इंटरवल क्या दिया हुआ है, उसने इंटरवल दिया हुआ 0 से 720। तो अगर तो 360 तक होता है फिर वही आंसर आ जाते, लेकिन अब 720 तक है, तो आपको देखना 360 से बड़े एंगल्स फिर नहीं आ रहे कोई। तो 360 से बड़े एंगल्स कैसे आते हैं, एक पूरा सर्कल घूम लिया और फिर दोबारा यहाँ पर आए, व्हाट वुड दैट बी, 360 पूरा सर्कल, फिर 180 और फिर प्लस 11.5, दैट्स 551.5। सिमिलरली फिर दोबारा से 360 घूमा और फिर दोबारा जाके आप इस एंगल पे पहुंच गए। ये कैसे आएगा, 360 plus 360 minus 11.5, and that gives you this. You take this as a sign ऊपर। लिमिट से पता चलेगा कि आपका एंगल डिग्रीज में है या रेडियन में, लिमिट्स आप सब। ओके, any problem with this? You got 4 solutions for this one. Let's look at the next part, next example now. Then we had tan x equals 3. Let's solve this equation. क्या करेंगे सबसे पहले, बेसिक एंगल, tan alpha equals 3. What's the value of alpha? 1.249. Now you've got to be a bit careful. Look at the interval that's given. The interval is from minus pi to 3 pi. इसके ऊपर डिग्रीज का साइन नजर आ रहा है आपको? डिग्रीज का साइन नहीं है तो ये रेडियंस है। ओके, दिस इज रेडियंस। और जब पाई की टर्म्स में लिखा होगा, जब पाई की टर्म्स में होगा, इट्स गोइंग टू बी that's a hint well कि ये रेडियंस में, डिग्रीज वाले एंगल्स हम पाई की टर्म्स में नहीं लगते होते। ओके, क्यों करेंगे खटवर्ड, आपको आंसर भी डिग्रीज में चाहिए, रेंज भी सॉरी आंसर भी रेडियन में चाहिए, रेंज भी रेडियन में, तो डिग्रीज में क्यों कन्वर्ट करना है आपको? तो ये ऐसे ही रहेगा, इसी को इस तरह से सॉल्व करेंगे आप। ओके, इंटरवल क्या दिया हुआ है, -pi to 3 pi, -pi to 3 pi, that's what it is. Okay, बेसिक एंगल आ गया रेडियंस में 1.249. Now let's think of quadrants. Tan is positive. Which quadrants are those? First and third. ये possible quadrants है, तो आपके बेसिक एंगल यहाँ पे बन रहे होंगे, एक एंगल यहाँ पर आ सकता है और दूसरा एंगल यहाँ पर आ सकता है। Now remember, when the angles are in radians, you start from 0 here. सबसे पहले 0 होता है, then you have here
pi over 2. 90 degrees is pi over 2, right? Then you have pi, what's this? 3 pi over 2, and then you have 2 pi. ठीक है, ये आपके इस तरह से आ रहे होते हैं. अब वो इंटरवल क्या दिया हुआ है? -पाई. तो एक तो आपको नेगेटिव एंगल्स भी कंसिडर करने हैं. नेगेटिव में देखना आपके इंटरवल में कुछ आ सकता है. और दूसरा 3 पाई, मैक्सिमम इज 3 पाई, यानी 2 पाई से ऊपर भी आप जा सकते हो, पूरा सर्किल घूम के दोबारा भी आ सकते हो. दैट्स आल्सो पॉसिबल. ऑलराइट, तो नेगेटिव एंगल्स भी देखने हैं और 2 पाई से बड़े भी देखने हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. x इज द वेरिएबल हियर. क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? सबसे पहले तो ये एंगल आपके पास आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला. दिस इज 1.249. ये तो रेंज में आपका एक पॉइंट आ गया, एक वैल्यू आ गई. ठीक है, अच्छा अभी पहले पॉजिटिव वाले देख लेते हैं सारे. अच्छा, फिर पूरा घूम के आगे यहाँ पर आ जाएंगे. व्हाट्स दिस? पाई प्लस 1.249. स्ट्रेट लाइन का पाई, उसमें 1.249 आपने ऐड कर देना. So this is another value of x that you have, pi plus 1.249. What's this value? 4.39. That's your second value. Okay. दो आ गई. अब क्या करें? अब हम देखते हैं, क्योंकि 2 पाई से बड़ा एंगल भी है, हम ये भी कर सकते हैं कि हम पूरा सर्किल घूम के वापस आ जाए यहाँ पे, and then we come back to this thing. Is that possible? What would that be? 2 pi plus 1.249. What's that? 7.53. This is another value of x. Okay. अब ये भी हो सकता था कि आप ये पूरा घूम के यहां पर आ जाओ. All right. अब ये एंगल क्या होगा? Think about this. This is 2 pi, one full circle, plus pi, and then plus 1.249. Is that in the interval? That is not in the interval. तो वहां पे नहीं जाएंगे हम. ठीक है, तो पॉजिटिव साइड पे हम और आगे नहीं जा सकते. दैट्स द लिमिट. ये क्लियर है? पॉजिटिव साइड पे अगर यहाँ पे उस पे वापस जाएंगे इस वाले पॉइंट के ऊपर, तो वो 3 पाई इंटरवल से बाहर चला जाएगा. वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दैट एंगल. अब देखते हैं, क्योंकि अब नेगेटिव साइड पे भी तो इंटरवल है, हमें नेगेटिव साइड पे भी एंगल्स देखने हैं यहाँ पे. लेट्स गो टू द नेगेटिव साइड नाउ. This is the first angle that we're getting on the negative side. Now, how are we going to think about this? Pi में से माइनस कर दें 1.249. However, since we are going in the clockwise direction, ये एंगल नेगेटिव होना चाहिए. इसके बाहर आप माइनस लगा दें. स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन में पाई में से माइनस कर दिया ये अल्फा. That is giving us 1.249. That's one thing. But since we're going clockwise angles negative होते हैं. We put a minus sign outside because of that, because we are going clockwise. ये बन जाएगा minus pi plus 1.249. If you wanted, you could write it like this as well. That's also fine. And that gives you x equal to minus 1.89. Thank you. You got this value of x, and this, and this. ये 4 possible answers आ रहे हैं हमारे पास इस केस में भी. अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी आज क्या दिन है? आज थर्सडे है. कब हमारी क्लास हुई थी इस पे? कल के और आज के दरम्यान में काफी टाइम था. हाँ, तो कल अब मतलब क्लास रिकॉर्ड भी होती है, नोट्स भी होते हैं. नोट्स भी नहीं आपने देखी और क्लास की रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी. देखें, आपका जो इंटरवल है, इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है? -5 से 3 पाई. इसका मतलब है आपको नेगेटिव साइड पे भी एंगल्स देखना है. नेगेटिव साइड पे भी एंगल्स देखना है. तो अगर हम वहां से
इस लाइन से नेगेटिव साइड पे अगर जाते हैं इस डायरेक्शन के अंदर, राइट, इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये एंगल हमें क्या क्या मिलता है? ये एंगल क्या है? ये एंगल कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन पे एंगल पाई होता है, उसमें से माइनस कर दिया वो अल्फा, तो दैट्स पाई माइनस 1.249। लेकिन क्योंकि क्लॉकवाइज आ रहे हैं, क्लॉकवाइज एंगल्स नेगेटिव होते हैं, so this thing has to be negative by minus sign एक लगा दिया. Okay, because we're going clockwise. Another way of thinking about this is just this directly, कि ये एंगल माइनस पाई है, माइनस पाई में से ये माइनस करना है, so वो माइनस पाई प्लस अल्फा बन जाता है. You could also do that. I think this is easier to think about. पाई में से वो माइनस किया और बस बाहर माइनस साइन लगा दिया आपने, क्योंकि वो क्लॉकवाइज आ रहे हैं, नेगेटिव होना चाहिए. Make sense? Any problems? Clear है सबको? Okay, let's do one last example on this, और उसके बाद एक और चीज डिस्कस करते हैं. Let's say we've got something like this now. Sine of x equals minus, sorry? Okay, so Ibrahim is saying minus 2.4. Solve this equation and see what you get. Ibrahim solve करेंगे ये. Ibrahim solve करेंगे for x between 0 degrees, or let's say minus 180 degrees and 360 degrees. Okay, solve this. Ibrahim, आपका नाम इब्राहिम है, आपका नाम इब्राहिम है. इब्राहिम कौन है? इब्राहिम कौन है? इब्राहिम कौन है यहाँ पे? इब्राहिम शामिल कौन है? इब्राहिम, ठीक है, क्यों? डिग्री था, डिग्री का साइन है ना ऊपर. अच्छा, तो इट्स अ गुड थिंग दैट यू आस्क्ड दिस. इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा. माइनस इग्नोर भी कर देंगे फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं आएगा. No, why? This equation does not have any solution. साइन की जो वैल्यूज होती है ना, वो -1 और 1 के दरमियान में हो सकती है सर, इससे ऊपर नहीं जा सकती है. साइन जो फंक्शन है ना, इसकी वैल्यूज -1 और 1 के दरमियान में होती हैं, इससे बाहर नहीं जा सकती हैं. The reason for that is, remember हम राइट एंगल ट्राइंगल से देख रहे होते थे ना, साइन क्या होता था? परपेंडिकुलर ओवर द हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो सकता है कभी? हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है ना, तो y ओवर h जो है वो कभी भी 1 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता. परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के क्योंकि बड़ा होगा, परपेंडिकुलर छोटा होगा, तो ये 1 से बड़ा नहीं आ सकता कभी भी. सिमिलरली cos is x over h, adjacent over hypotenuse. Adjacent साइड भी हाइपोटेन्यूज से बड़ी नहीं हो सकती ना, तो cos की भी यही लिमिट होती है. cos of x भी जो होता है ये -1 और 1 के दरमियान में होता है. ये हम ग्राफ्स करेंगे ना नेक्स्ट वीक, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा. tan की कोई लिमिट नहीं होती है, बिकॉज परपेंडिकुलर और जो बेस होती है उनकी कोई भी रेशियो हो सकती है. tan can go from negative infinity to positive infinity. वो ट्रायंगल नहीं बनता. हाँ, वो स्ट्रेट लाइन बनता है. वो होता है कि उस पे जब हाइपोटेन्यूज बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए उसके परपेंडिकुलर के या बेस के, तो वो होता है. अच्छा, खैर, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है इब्राहिम. This equation cannot be solved. There is no value of x that satisfies this equation. Again, the reason is because sin की values -1 और 1 के इंटरवल से बाहर नहीं जा सकती हैं. आप बताएं tan नेगेटिव कहाँ पर होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में. और तो ट्रायंगल कौन सी, हमने कल क्या डिस्कस किया था? डेफिनेशन हमने कहा था थोड़ी सी चेंज, हमने कहा था डेफिनेशन चेंज हो गई है ना.
साइन कॉस टैन की, जो पहले आपने पढ़ी थी जब छोटे होते थे, आप क्या पढ़ा था? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट? अब वो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एडजेसेंट की जगह इट्स द एक्स कोऑर्डिनेट, इट्स द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पर ऑपोजिट परपेंडिकुलर की जगह पे वी हैव द वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सेकंड और फोर्थ में जो एंगल्स होंगे वो उसमें वहां पे टैन जो है वो नेगेटिव हो सकता है। So इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, so let me change this for Ibrahim, and Ibrahim now tell us what are the solutions to this equation. This can be solved. ये करें हम। Sin of x equals minus 0.4. Solve this equation. और आपके नोटबुक किधर है? और आपके पास नोटबुक नहीं पड़ी हुई है सामने, तो फिर क्या होता है? जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इसलिए एग्जाम में भी यही होता है, फिर एग्जाम में भी ये सोच रहे होते हैं हम घर जाके करेंगे, यहाँ पे करने की जरूरत क्या है? जब तक आप अपने हाथ से लिखेंगे नहीं ना, नहीं होगा। हाशिम लिख रहा है, अब्दुल वासे लिख रहा है, इन लोगों को लिखने की जरूरत है, लेकिन अहमद को जरूरत नहीं है बिल्कुल। अहमद या अब्दुल्ला इज मेकिंग नोट्स फॉर अ चेंज। ओके, अब क्या? अच्छा, प्लीज फोकस नाउ। Okay, how do we start? Find the basic angle. Sine of alpha equals 0.4. एंगल डिग्रीज में, रेडियंस में? डिग्रीज में, राइट? डिग्रीज का साइन में नजर आ रहा है आपको वहां पे। 23.6 degrees. That's the basic angle. Now let's draw quadrants. कौन से क्वाड्रेंट में हो सकते हैं? साइन नेगेटिव किधर होता है? थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड फोर्थ में इट्स नेगेटिव। So it's either the third or the fourth. We could be in these two quadrants. Okay. अब आप देखेंगे इनमें क्या एंगल, इन दोनों क्वाड्रेंट से कौन से एंगल्स बनते हैं। This is the first angle that you're getting. How do you write this? 180 plus 23.6, 203.6. And the one in the fourth quadrant is 360 minus 23.6, 336.4 degrees. पॉजिटिव साइड पे आपके पास यही पॉसिबिलिटीज है। इसके लिए आपको कल की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी अब्दुर्रहमान। बेसिकली जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, सबसे पहले हमने निकालना होता है बेसिक एंगल। बेसिक एंगल क्या होता है? जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बन रहा होता है। वो बेसिक एंगल निकालने के लिए ना, राइट साइड पे जो भी होगा उसको आप पॉजिटिव कर देंगे। जो लेफ्ट साइड पे एंगल होएगा उसको आप अल्फा में चेंज कर देंगे। राइट साइड पे जो मर्जी नंबर होगा यू गोइंग टू मेक दैट पॉजिटिव। अगर पहले ही पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगा, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। इसकी वजह ये होती है, बेसिक एंगल होता है एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल आता है जब एक्यूट एंगल्स होते हैं तो साइन कॉस टैन तीनों पॉजिटिव होते हैं उसके ऊपर। जब पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेटर में डालोगे तो वो आपको एक एक्यूट एंगल देगा। नेगेटिव वैल्यू से आपको एक्यूट एंगल नहीं देगा, वो कोई और एंगल दे देगा आपको। ओके, तो आपको हमेशा राइट साइड को पॉजिटिव करना होता है टू फाइंड द बेसिक एंगल। बेसिक एंगल आ गया, आप क्वाड्रेंट से देख रहे हैं, साइन नेगेटिव है, साइन इज नेगेटिव इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये दो एंगल्स हमारे पास आ गए। नाउ द इंटरवल इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ नेगेटिव वैल्यू, तो आपको नेगेटिव साइड पे भी चेक करना है।
So you have to go in the clockwise direction as well. Now let's see what we get from that. Clockwise में ये हमारे पास first angle आ रहा है. What's this angle? Minus 23.6 degrees. And you have another angle here. यहाँ पे भी जा सकते हैं. 180 minus 23.6. लेकिन क्योंकि ये clockwise direction में जा रहे हैं, there should be a minus sign outside. This is minus 156.4 degrees. These are the 4 answers that we have got. Okay? ये चारों इस equation के solutions हैं. तीन भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. So any number solution. At least 1 decimal place. Degrees के लिए at least 1 decimal place. Degrees के अलावा जो भी है, at least 3 significant figures. क्या होगा? क्यों करनी पड़ी? एक ही बात है, फर्क क्या पड़ेगा? It's just because you do not find yourself comfortable in radians yet, but you have to get yourself comfortable because सिर्फ यहाँ पे नहीं है रेडियन. अब बाकी हर टॉपिक में जहाँ भी एंगल्स आ रहे होंगे, हम रेडियन ही यूज कर रहे होंगे हर जगह पे. That's the problem. We're not going to be using degrees a lot. नहीं चल रहा ना आपके पास. मैंने आपको कल भी उसने बताया था, अगर ये इक्वेशन है e raised to power x into sin x, इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू डिग्रीज में डाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि e raised to power 70 degrees, that would not make any sense. डिग्री से पता होना चाहिए ना, दोनों यूनिट पता होने चाहिए. This is not radian. This is not an angle. Ahmed, what were you saying? A1 now. So now. No. See, this is not in degrees or radians. This is the value of sine. It's x that is either in radians or degrees. X is the angle. 0.4 is not the angle. Angle is x. And when it says x is between this and this, that means x is in degrees. All right, ठीक है. इसमें क्या मसला? इक्वेशन सॉल्व करने का इसमें क्या मसला है किसी को? क्या है? सबर. अभी तो शुरू हुई है क्लास, क्या हो गया? Okay, let's have a 2-minute break. Then we resume. Acha, now let's try solving this equation. Cos of theta equals -1 for theta between
0 and 360. Guys, this is really important now. Please focus. Cos theta equals -1. We want to solve this equation. How do we solve this equation? How do we start? सबसे पहले क्या करेंगे? Alpha लगा देंगे. What's the basic angle? Basic angle क्या है? 0. Okay, now 0 is the basic angle, right? Let's draw quadrants. Cos is negative. Where is cos negative? अब यहाँ पे मसला क्या है? Alpha is something. Sorry. Alpha 0 है. इसका horizontal line से angle क्या है? 0. Horizontal line से 0 angle है. अब ये तो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आया. इसको कौन से क्वाड्रेंट में ड्रॉ करें हम? इसको कौन से क्वाड्रेंट में ड्रॉ करें? 0 डिग्रीज. ये तो किसी भी क्वाड्रेंट के नहीं, अंदर नहीं आता. And that is actually going to be a problem whenever the basic angle turns out to be 0 or 90. जब भी basic angle 0 होगा, जब 0 होगा तो क्या मतलब है? आप इस लाइन के ऊपर हो. जब 90 होगा तो तब क्या है? आप इस लाइन के ऊपर हो. इन दो केसेस के अंदर आप किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं होगे. तो ये जो क्वाड्रेंट वाला मेथड है, it's not going to work in these two cases. In which two cases? When alpha is 0 and when alpha is 90. इन दोनों केसेस के अंदर आपका क्वाड्रेंट वाला मेथड नहीं चलेगा. ठीक है, तो अब इसको क्या करना है? इसको हमें सेपरेटली डील करना है. हम देखते हैं. ये बताएं कैसे. अगर मेरे पास हो tan of theta that equals में that is going to work. अगर हमारे पास cos में आ जाए let's say 0. उसमें भी वो हो जाएगा. cos में अगर -1 आए तो ये होगा. 1 पे क्या होगा? वो 0 पे आएगा. 360 पे आएगा. उसमें भी वर्क. tan क्या होगा? ठीक है, इसमें आसान नहीं हो रहा. वो साइन पे देखते हैं. साइन थीटा के केस में क्या होगा? साइन पे अगर 0 होगा. What about this? What do you do with this? Sin theta equals 0 अगर आपके पास, तो क्या करेंगे? और तीन आंसर आ रहे होंगे ना. वो कैसे निकलेंगे उससे? ग्राफ से. तो या तो ग्राफ से सोचना पड़ेगा. That's the thing. ग्राफ से सोचना पड़ेगा. ओके, अच्छा देखिए, बात सुने. अब मसला क्या है? कभी कभी आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएंगी जहां पे आपका जो एंगल है वो किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आ रहा होगा. ओके, अब इसमें आप क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट मेथड नहीं चलेगा. ओके, so let me write it down. When the quadrant method does not work, इसमें कौन कौन से केसेस होंगे आपके पास? या तो आपके पास होगा जब साइन थीटा
or cos theta is equal to -1 or 0 और 1। ये जो 3 केसेस आएंगे आपके पास, when sin theta or cos theta, when that is equal to -1, 0 और 1, इन तीनों केसेस में क्या होगा, जब आप बेसिक एंगल निकालेंगे या तो वो 0 आ रहा होगा या वो 90 आ रहा होगा, या 0 आएगा या 90 आएगा। वो किसी भी कोऑर्डिनेट मेथड को किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर नहीं लाई करता। इसी तरह से ये भी हो सकता है जब tan की वैल्यू 0 के इक्वल है, इस केस में भी आपके थीटा जो बेसिक एंगल आएगा वो 0 आएगा, वो किसी कोऑर्डिनेट के अंदर नहीं आएगा, तो कोऑर्डिनेट मेथड यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते। तो इन केसेस में आपने क्या करना है, let me write this down as well. It doesn't work when alpha equals 0 or alpha equals 90 degrees. इन दोनों केसेस के अंदर आपका ये मेथड नहीं चलेगा। और ये कब आएंगे ये दोनों केसेस, इन सिचुएशंस में जब साइन या कॉस की वैल्यू -1, 0 या 1 है, या tan की वैल्यू 0 के इक्वल है। दैट ओके? ये केसेस है जहां पे ये मसला आएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन? इसको आप कोऑर्डिनेट मेथड से नहीं करोगे, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। वन आइडिया इज दैट यू यूज ग्राफ्स, और ये आप जब ग्राफ्स हम कवर कर लेंगे, यू विल फाइंड आउट इट्स प्रीटी इजी। आफ्टर दैट आपको वो ग्राफ की शेप दिमाग में याद हो जाएगी, ये ग्राफ इसका ऐसे होता है, ऐसा ग्राफ ऐसे होता है, ऐसा ग्राफ ऐसे होता है, एंड यू कैन डू इट डायरेक्टली देन फ्रॉम द ग्राफ। ओके, दैट्स वन पॉसिबिलिटी। वन पॉसिबिलिटी इज कि आप ग्राफ कर लेंगे, साइन कॉस टैन के ग्राफ से, वो लेकिन तब होगा जब हम ग्राफ कर लेंगे उसके बाद। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हमें पता है ये प्रॉब्लम कब आ रही है, जब आप किसी को एक्सेस के ऊपर लाए कर रहे हो, एक्सेस से ऊपर लाए कर रहे हो तब मसला हो रहा है। 0 पे, 90 पे, 180 पे, 270 पे, 360 पे। तो आप क्या करोगे, इस तरह की इक्वेशंस के लिए यू आर जस्ट गोइंग टू ट्राई all multiples of 90 degrees in the given interval. Try all multiples of 90 degrees in the given interval, including 0. 0 भी उसके अंदर इंक्लूड करना है। Okay, and you will get the solution. जो भी इंटरवल उसने दिया हुआ है, इंटरवल क्वेश्चन में दिया होगा ना, उसने दिया हुआ 0 से 360 तक। इसमें क्या करेंगे आप ट्राई करेंगे cos 0 क्या आता है, cos 90 क्या आता है, cos of 180 क्या आता है, cos of 270 क्या आता है, और cos of 360 क्या आता है। For now you can just do this. जब हम ग्राफ्स कर लेंगे ना, ये सारी वैल्यूज आपको याद ही हो जाएंगी कि 0 पे ये होता है, 90 पे ये होता है, 180 पे ये होता है। You'll remember this in your head. अभी के लिए आपको नहीं याद, तो आप क्या करोगे, ये आप नेक्स्ट वीक में ये आप कैलकुलेटर से निकाल लोगे। cos 0 क्या होएगा, 1, so it doesn't work, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। cos 90 होता है 0, that also doesn't work। cos 180 पे आपको क्या मिलेगा, -1, that works। 270 पे you get 0, that doesn't work। 360 पे you get 1, that also doesn't work। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का, फिर थीटा इक्वल्स 180 डिग्री। तो आप बस कैलकुलेटर पे ये ट्राई करोगे, डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, थीटा की वैल्यू 180 है। मेक सेंस? 360 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, वो क्या लिखा हुआ है, -1। ओके, तो इसका एक ही सोल्यूशन है, दैट्स 180 डिग्री विद इन द इंटरवल। इज दैट ओके? आपने सिर्फ क्या करना है, 90 के मल्टीपल चेक कर लेना है, दैट्स इट। जब रेडियंस में हो गया तो क्या करेंगे, 5/2 के मल्टीपल वो चेक कर लेना।
किसी क्वाड्रेंट में नहीं है ना, तो क्वाड्रेंट वाला मेथड तो यूज ही नहीं कर सकते ना, क्वाड्रेंट में तो है ही नहीं किसी, हमें तो क्वाड्रेंट का पता है, इस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, इसमें ये नेगेटिव होता है, यहाँ पे तो क्वाड्रेंट है ही नहीं ऐसा, वो तो लाइन के ऊपर लाई करे, एक्सिस के ऊपर लाई करे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स से यू हैव, हमेशा ऐसे नहीं होएगा ना, हमेशा ऐसा नहीं होएगा, बिकॉज अब उस टैन में नहीं चलेगा ना ये सेम लॉजिक, क्यों नहीं चलेगा, 90 के मल्टीपल्स आपने मिस्टेक करने, दैट्स ऑल यू गॉट टू डू। हाँ, tan 180 मल्टीपल्स की बात करें ना, tan 180 चेक करेंगे, 0 चेक करेंगे और 360 चेक करेंगे, जो चलते हैं। बस ये आंसर है, थीटा इक्वल्स 180। इसमें सॉल्व कुछ भी नहीं करना होगा आपको इन इक्वेशंस में, आपने बस ये ट्राई करनी है वैल्यू, आंसर लिख देना है बस, और कुछ भी नहीं करनी। इसमें क्वाड्रेंट वाला मेथड नहीं चलेगा, आपने डायरेक्ट आंसर लिख देना है। यस सर। वो तो किसी क्वाड्रेंट के अंदर लाया करे, तो वो तो 90 के मल्टीपल्स नहीं होगा ना। अच्छा, sin x equals 0 है let's say, and interval is from 0 to 2 pi। ये सॉल्व करें, जल्दी से करें। क्या क्या चेक करेंगे? 0 पे pi/2, pi, 3 pi/2, 2 pi, ये सारे चेक करेंगे। ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, और ये आ जाएगा। तो इसके कितने सोल्यूशन आ जाएंगे? x equals 0, x equals pi, x equals 2 pi, 3 सोल्यूशन आ जाएंगे। pi/2 के मल्टीपल चेक करेंगे, राइट, जिस डिग्रीज में 90 के मल्टीपल चेक करें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, pi/2 के मल्टीपल चेक कर लेंगे। मेक सेंस?